आ गया। हेलो। गुड इवनिंग सर। Yes. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब तुम लोग कॉपी कलम निकालो तो ठीक है। निकला। यस सर। चलो लिखो। अच्छा ठीक। यस सर। मेन पॉइंट्स of Aristotle's Poetics. लिखा। अरे कितना देर तुम लोग लगाता है? Yes, sir. यस सर लिख हो रहे गया हैं। है सर। हाँ चलो लिखो। पहला पॉइंट लिखो। एपिक पोएट्री कॉमा ट्रेजेडी एज वेल एज कॉमेडी आर ऑल मोड्स ऑफ इमिटेशन लिख लिया। पॉइंट यस नंबर सर। 2। द ऑब्जेक्ट्स द imitator represents are actions. सर प्लीज अगेन रिपीट। The objects the imitator represents are actions, comma with agents who are necessarily either good men or bad. Full stop. The agents represented must be either above their own level of goodness, comma or beneath it or just normal. Full stop. Point number 3. Given both the same means and the same kind of object, Sir, same.
means given both the same means and the same kind of object for imitation, comma, one may either a पोस्ट में लिखना a speak at one moment in a narrative speak at one moment in a narrative, comma, and in another in an assumed character, comma, as Homer, H capital से ना Homer, as Homer does in his epic. कॉमा और बी कोष्ट में देना one may remain the same throughout without any change, और सी कोष्ट में देना सर बी पॉइंट फिर से बोलिए. बी, हाँ, one may remain the same throughout, comma, without any change, और सी कोष्ट में देना the imitators may represent the whole story dramatically, comma, as though they were actually doing the things described. कोष्ट में लिखना ड्रामा. पॉइंट नंबर 4, पोएट्री, कॉमा, however, comma, soon broke up into सर पोएट्री कॉमा हाउएवर. soon broke up into two kinds according to the differences of character in the individual poets. So differences of character. Character in the individual poets. Colon, for the graver among them would represent noble actions, comma, and those of noble personages, full stop. Homer was the first to outline
for us the general forms of comedy by producing a narrative, not a dramatic, invective. Full सर stop. एक बार फिर से बोलिएगा. कौन? Homer The was gen- the first. Homer was the first to outline for us the general forms of comedy by producing a narrative, not a dramatic, invective. Full stop. As soon as, however, as tragedy and comedy appeared in the field, those drawn naturally to one kind of poetry became writers of comedies, and those drawn to other became writers of tragedies. सर एंड ड्रॉन्ड के बाद फिर से बोलिएगा. And those drawn to other became writers of tragedies. पांचवा लिखो. एज फॉर कॉमेडी, ये ट्रेजेडी का डिफिनीशन तुम लोग को लिखा है ना, ये कॉमेडी का डिफिनीशन है जो अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में लिखा है. ठीक है, वो अभी 5वें पॉइंट में आ रहा है. लिखो. एज फॉर कॉमेडी, it is an imitation of men worse than the average, semicolon, worse, however, not as regards आया नहीं. हाँ चलो रेडी. हाँ. As for comedy, it is an imitation of men worse than the average. ठीक है. Worse, however, not as regards any and every sort of fault. लिखा. नॉट एज रिगार्ड्स तक लिखवाए हैं आप. Not as regards any and every sort of fault. But only as regards
but only as regards one particular kind, only as regards one particular kind, comma, the ridiculous, R कैपिटल से देना, the ridiculous, 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 comma, which is a species of, which is a species of the ugly, ugly में U कैपिटल से देना है, which is a species of the ugly, full stop. The ridiculous may be defined as a mistake or deformity that is not productive, that is not productive of pain or harm to others. ठीक है, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ कॉमेडी बाय एरिस्टोटल. ठीक है, और ट्रेजेडी का तो तुम लोग को लिखाइए दिए हैं. ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट में कि देयर आर 6 पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ एवरी ट्रेजेडी. कॉमा, प्लॉट, कॉमा कैरेक्टर्स, कॉमा डिक्शन, कॉमा थॉट, कॉमा स्पेक्टेकल एंड मेलोडी, एंड मेलोडी. फिर पैरा चेंज करके लिखो, ट्रेजेडी इज एसेंशियली an imitation, tragedy is essentially an imitation not of persons but of action and life, but of action and life, comma, of happiness and misery, of happiness and misery. कैरेक्टर, फिर पारा चेंज करके लिखना, कैरेक्टर गिव्स अस क्वालिटी, comma, but it is in our actions, comma, what we do, comma, that we are happy or the reverse.
हो गया। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्लॉट्स आर आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। प्लॉट्स आर आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, comma since the actions they represent are naturally of twofold description. Full stop. The action proceeding. Sir, naturally of twofold description. Full stop. The action proceeding in the way decided, comma, as one continuous Sir, whole. The action proceeding In the way decided, comma, as one continuous whole. The action proceeding in the way decided as one continuous whole is called simple. Comma, when the change in the hero's fortunes when the change in the hero's fortunes takes place without discovery, semicolon, and complex when it involves one or the other or both. Full stop. Next point लिखो, the peripety means discovery, ठीक है। A peripety is the change from one side of things within the play. So please repeat this point. A peripety, peripety, is the change, peripety or discovery लिख लेना, or discovery is the change from one side of things within the play to its opposite of the kind described, comma, and that too in the way that suggests the probable or necessary sequence of events. हो गया। पैराग्राफ चेंज करके उसी में लिखो, ए डिस्कवरी इज, comma, as the same implies a change from ignorance to knowledge,
a change from ignorance to knowledge, comma, and thus to either love or hate, comma, in the persons. सर एक बार रिपीट करिएगा. इग्नोरेंस ऑफ लाइफ. अरे a change from ignorance to knowledge, comma, and thus to either love or hate, comma, in the persons marked for good or evil fortunes. फिर para change. The most powerful elements of attraction in tragedy comma, the peripeties and discoveries, comma, are parts of the plot. Are parts of the plot. लिखा गया? यस सर. हाँ चलो अब हम लोग एनालिसिस करते हैं जो हम लोग लिखे उसका. ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि एपिक पोएट्री, ट्रेजेडी एज वेल एज कॉमेडी. ठीक है, ऑल आर मोड्स ऑफ इमिटेशन. क्लियर? तो मैंने कल कहा था कि एवरी आर्ट, ठीक है, इज व्हाट? एवरी आर्ट इज अ कॉपी. एवरी आर्ट इज ए कॉपी और द वर्क ऑफ इमिटेशन. क्लियर हुआ? यस सर. लेकिन द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेटर क्या होता है? इमिटेटर किसको इमिटेट करता है? तो वो एक्शन को. ठीक है, एक्शन कैसा, या वो गुड रहे या बैड रहे. ठीक है, वो बिना एक्शन के, ठीक है, न एपिक हो सकता है, न ट्रेजेडी और न कॉमेडी. एपिक समझते हो ना? Yes, a very long poetry. हाँ, वेरी लॉन्ग नरेटिव. ठीक है, जैसे कि महाभारत है और रामायण है, पैराडाइज लॉस्ट है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि दो टाइप का कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है ना? एक गुड है और एक बैड है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, राम रिप्रेजेंट्स all the good qualities, all the good values, while Ravan represents all the bad qualities. हुआ ना? लेकिन दोनों को ही अपने अपने क्वालिटीज में एक्सेल करना है. बात समझ में आई? रावण अगर बैड नहीं रहेगा, ठीक है, उसमें फॉल्ट्स नहीं रहेंगे, तो कोई जो है गुडनेस राम का अपीयर होगा? नो सर. नहीं होगा. उसी ढंग से महाभारत में पांडव इज सेट फॉर क्या? डूइंग ऑल द गुड थिंग्स, व्हाइल द पांडवाज, ठीक है, ये सॉरी कौरवाज आर ऑल क्या? डूइंग बैड थिंग्स, वर्स थिंग्स. ठीक है, तो जो जिसका रोल है, एक्शन को क्या करना है वही रिप्रेजेंट करेगा. बैड है तो बैड एक्शन, गुड है तो गुड एक्शन. वो एपिक की मैं बात कर रहा हूं. क्लियर ना? अब देखो किंग लियर तुम लोगों ने पढ़ा. तो कोर्डेलिया हैज टू रिप्रेजेंट द गुड आइडियल्स, व्हाइल हर सिस्टर्स क्या? रिप्रेजेंट बैड थिंग्स, विकेड थिंग्स, है ना? तो क्या है कि यू सी द अपोजिट थिंग्स, गुड एंड बैड थिंग्स. ठीक है, लेकिन ये थिंग क्या है? ये इट मस्ट बी क्या? इमिटेटेड थ्रू एक्शन.
ठीक है। तो ये हो गया। या तो जो है एजेंट जो है गुड को रिप्रेजेंट करे या बैड को, ठीक है। अच्छा, उसमें भी क्या है कि देयर आर वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जो कि आइदर दे आर वेरी हाई इन शोइंग गुडनेस और जस्ट बिलो इट, और समटाइम इट्स वेरी नॉर्मल सॉर्ट ऑफ गुडनेस। बात समझ में आई? उसी ढंग से बैड थिंग्स में भी वही होता है, कुछ नॉर्मल, कुछ गुडनेस के हाइट को, ये बैड एलिमेंट्स को हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ उसके नीचे करते हैं। जैसे कि रावण था, लेकिन कुंभकर्ण उतना कमीना नहीं था जितना रावण था, है? ठीक ना? तो उसी ढंग से सबका अपना अपना कैरेक्टर होता है और वो लोग उस ढंग से शो करते हैं। एवरीथिंग, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द एक्शन। क्लियर हुआ? फिर है given both the same means and same kind of object in for imitation, one may either speak at one moment in narrative and in another in an assumed character। ठीक है। अब कैरेक्टर्स भी अलग अलग टाइप के एपिक में, होमर वाज ए ग्रेट एपिक राइटर, ठीक है, तो उसने कुछ नरेटिव्स दिए, तो यू सी द चेंज, ठीक है, इन द एक्शन ऑफ द कैरेक्टर, कभी कुछ होते रहता है। फिर आ गया पोएट्री। ये पोएट्री क्या है भाई? तो ये इट्स ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। पहला में क्या है भाई? तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पोएट्स, ठीक है। सम पोएट्स सी इन इट सीरियस थिंग्स while others see in it noble actions, ठीक है। And we see the narration also of the noble personages also, persons also, ठीक है। This is also a way of imitation, poetry, ठीक है। अब क्या है कि वन हु सी द लाइटर साइड ऑफ लाइफ becomes the comedy writer, and one who see the serious type of life or represent क्या serious action, ठीक है, he becomes the writer of tragedy। Clear? कॉमेडी का डिफिनेशन क्या है कि इट इज एन इमिटेशन ऑफ मेन वर्स देन द एवरेज, ठीक है। ये कोई बहुत बेहतरीन आदमी इसमें नहीं होता है, कैरेक्टर नहीं होता है, आउट एंड आउट गुड आदमी ही कॉमेडी में हो। ये क्या है? वर्स देन एवरेज, जो एवरेज से भी नीचे है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ठीक है। द कॉमेडी इमिटेट्स दैट पर्सन। कैरेक्टर ट्रेजेडी की तरह नहीं है कि ही मस्ट बी नोबल, ही मस्ट रिप्रेजेंट गुडनेस, ठीक है, ही मस्ट रिप्रेजेंट द रियल वैल्यूज ऑफ लाइफ। कॉमेडी में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जस्ट एवरेज मैन गेट्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और उसमें भी क्या है कि फॉल्ट शुड नॉट बी ऑफ सीरियस काइंड, लेकिन फॉल्ट होना चाहिए कैसा? रेडिकुलस। रेडिकुलस से क्या मतलब है? या तो कोई आदमी मिस्टेक करे या उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो, ठीक है, उसके सोच में कोई डिफॉर्मिटी हो, तभी वो क्या होगा? कॉमेडी का पात्र होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है।
तो फॉल्ट वो सीरियस फॉल्ट नहीं जो, और ये फॉल्ट से मतलब मिस्टेक से है, मिस्टेक हो जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, इसमें जुड़वा रहता है, या तो हीरो रहेगा जुड़वा या हीरोइन रहेगी जुड़वा, देखा है ना? यस सर। हाँ, तो वो मिस्टेकन आइडेंटिटी उसमें आती है। आइडेंटिटी क्या है? मतलब मिस्टर ए अगर मिस बी से लव कर रहा है, लेकिन मिस सी आ गई, चूंकि वो दोनों आइडेंटिकल है, तो मिस बी को ही मिस सी समझ लेता है। मिस्टर बी आता है या डी आता है, वो भी मिसगाइडेड हो जाता है। ठीक है, और नतीजा क्या होता है कि ये मिस्टेक जो है, मिस्टेकन आइडेंटिटी आपको क्या ले आता है? लाफ्टर ले आता है कि अरे ये तो उसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, ये तो मिस्टेक से चले आया। आपने जुड़वा फिल्म देखी है ना? यस सर। बहुत सारी। हाँ, तो वो हंसी क्यों आती है? व्हाट इज द काउज ऑफ लाफ्टर दैट कॉमेडी ब्रिंग्स टू यू? वही मिस्टेकन आइडेंटिटी। ठीक है, तो शेक्सपियर ने सबसे पहले इस कॉमेडी को जो है डिस्कवर किया। ठीक है, और उसका नतीजा ये हो गया कि उसने बहुत सारे ड्रामाज में, इस कॉमेडीज में इस ढंग के कैरेक्टर्स को लाया। कॉमेडी ऑफ एरर्स एक उसका है, एरर के चलते कॉमेडी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो शेक्सपियर का किसी ने पढ़ा है कॉमेडी कोई? यस सर, नाइट ट्वेल्थ तुम लोग नाइट। पढ़े हो? यस सर। हैं? यस तो सर। ट्वेल्थ नाइट में ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है ना, यस सर। वियोला एंड सेबास्टियन, सेबेस्टियन वियोला। है ना? तो यस। उसके कारण मिस्टेक होता है ना। यस सर, वो शादी कर लेता है और सीनो शादी कर लेता है, उसको समझ लेता है। ओलिविया जो है, ओलिविया से ओलिविया उसका, समझ लेती है। यस सर। हाँ, वो जो है ओलिविया जो है विचित्र है। ओलिविया और सीनो को तो चाहने नहीं लगती है, वो वियोला को ही चाहने लग जाती है, क्योंकि वियोला है लेडी, लेकिन वो जेंट्स के रूप में प्रकट होती है उसके सामने में। क्लियर? और लास्ट में वियोला से उसकी माने होने वाली है शादी वियोला से, लेकिन हो जाता है शादी उसका उसका जो भाई है सेबेस्टियन सेबास्टियन, से। उसके साथ हो जाती है। और उसको देख करके ही चंगला जाता है कौन? ओरसिनो। और ठीक सीनो। है, कि ये कैसे हो गया, ये तो गजब हो गया। तो ओलिविया ने स्पष्ट कह दिया कि अरे हम तो इससे शादी किए थे। वियोला कहती है क्या है, वो देखो तो कौन है। ठीक है, तो सारा स्ट्रक्चर कॉमेडी का ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर के कारण वो पूरा प्लॉट क्लियर होता है। ठीक है, और वही धीरे धीरे करके फिल्मों में आते गया, और आप लोगों ने देखा कि टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, ठीक है, कैन ब्रिंग हिलेरियस सिचुएशन, ठीक है, इन वंस लाइफ। क्लियर हो गया? और डिफॉर्मिटी से भी कॉमेडी उत्पन्न होता है। क्लियर? तो ये हो गया। फिर ट्रेजेडी का तो मैंने बता दिया। अब रह गए ट्रेजेडी का जो 6 पार्ट है। ठीक है, वो क्या है? तो पहला है प्लॉट। प्लॉट में बताया गया आपको कि प्लॉट दो प्रकार के होते हैं। प्लॉट मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, कैसा स्टोरी है। तो एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल प्लॉट वो होता है जिसमें पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि एक्शन क्या होगा, और उसी की ओर वो बढ़ते जाता है। ठीक है, और हीरो के फॉर्चून में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लॉट तब हो जाता है जब उसमें फॉर्चून भी बदलता है, डिस्कवरी यानी कि जो ट्रुथ्स के डिस्कवरीज हैं वो भी होते हैं। ठीक है, चाहे तो ये होगा
मतलब डिस्कवरी भी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, या उसके फॉर्चून में चेंजेज भी बहुत आएंगे। अब ये प्लॉट में डिस्कवरी से मतलब क्या निकलता है? तो डिस्कवरी से एक मतलब निकलता है कि ये चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज होता है ट्रेजेडी में, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्कवरी या पेरिपेटी बोलते हैं। क्लियर हुआ? इस डिस्कवरी के बिना, ठीक है, एक प्लॉट जो है ट्रेजेडी का बनता नहीं है। अब देखो ट्रेजेडी तुम लोगों ने किंग लियर पढ़ा पढ़ा ना, तो उसमें किस टाइप का जो है किससे नॉलेज प्राप्त हुआ और किसको प्राप्त हुआ? इग्नोरेंस टू नॉलेज, ठीक है। फर्स्ट इन एक्ट फर्स्ट यू सी मेनी पीपल हु आर इग्नोरेंट अबाउट वेरियस थिंग्स, बट एज द एक्ट प्रोसीड्स, ठीक है ना, फर्दर यू सी द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ एंड डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। बताओ ये किसके केस में हुआ? हु वाज और हु वेयर द कैरेक्टर्स हु गॉट this journey in their life? बताओ। कैसे किंग लियर से? हाँ, उसको किंग लियर के पता लाइफ नहीं में था, चेंज आया। उसको हाँ, किंग पता लियर नहीं के था। लाइफ में चेंज आया, ठीक है। क्या चेंज आया बच्चा बताओ? उसको बाद में पता चला कि उसकी जो सबसे छोटी बेटी है कॉर्डेलिया, वही है जो उससे रियल में प्यार करती है। हाँ सही है। और क्या हुआ? और वो अर्ल ऑफ केंट है, उसके भी जो लेजिटमेट बेटे को उसका इलेजिटमेट बेटा जो धोखे से बाहर करवा दिया था, उसको भी रियलिटी पता चला, तो उसने भी अपने बेटे को अपनाया फिर। ये हुआ। और क्या पता चला? और क्या पता चला? और तो नहीं पता सर। और नहीं पता चला? चलो दूसरा को बोल, दूसरा कोई बोलो क्या पता चला? बोलो। और किसको क्या पता चला? कोई नहीं बोल रहा है। पहली चीज किंग लियर को पता लगी, ठीक है, कि वन शुड नॉट बी इन हेस्ट, ठीक है। वन शुड टेक जजमेंट विथ ओपन माइंड, ठीक है। एंड वन शुड नॉट बूस्ट अबाउट हिज पावर, ठीक है ना, एंड अबाउट हिज प्रेजेंट कंडीशन। क्लियर? King Lear becomes a beggar after holding the rank of a king. ठीक है? Another thing that he got is jealousy, hatred, selfishness. These are the things which can prove very fatal to anyone. So one must be guarded by these things. Another thing is that he never thought about reversal of situation. Life is just like a wheel of fire. It changes. No condition can prevail for a long time. ठीक है? Any work of tragedy, you see, is just like
a thing of great knowledge. It resembles, or you can say it is very similar to any epic or the great knowledge that our religious things, religious texts give to all of us. ठीक है, बाइबल में द इक्लेसियास्टिस आप लोग को पढ़ना है, उसी में उसमें लिखा हुआ है कि लाइफ इज जस्ट लाइक ए वर्थलेस थिंग, इट इज जस्ट लाइक कैचिंग एन एयर इन द हैंड। ठीक है, रिलीजन हमारा कहता भी यही है, गीता भी यही कहती है और बुद्धिज्म भी यही कहता है। क्या है कि देयर इज नथिंग बट दुख, सफरिंग एंड प्रॉब्लम इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, whatever you position your position is, ठीक है, that position will continuously change। ठीक है, फिर हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि थॉमस ग्रे ने अपने पोएम एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में लिखा कि ऑल पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड अस बट टू द ग्रेव। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द थिंग्स विच शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय ईच एंड एवरी, क्या है, स्पेक्टेटर और द रीडर ऑफ ड्रामा। ठीक है, दिस इज द थिंग दैट इज मूविंग, क्या फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज और इग्नोरेंस टू रियलिटी। ठीक है, किंग लियर ग्रेजुअली कम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन लाइफ। ठीक है, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जब तक वो राजा था उसको समझ में नहीं आया था। ठीक है, बट ग्रेजुअली ही कुड सी हिज डाउनफॉल। ठीक है, तो इट्स द ग्रेटनेस ऑफ ट्रेजेडी दैट टीचेज यू हाउ टू फेस द चैलेंज एंड हाउ टू एक्सेप्ट योर डिस्टाइंड गोल। ठीक है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन में हैपन बट देयर इज नो गारंटी ऑफ इट। ठीक है, वन हैज टू सफर and suffering actually depends on the action, on the doings। ठीक है, आपका कर्म जो है आपको क्या करता है, आपको उस दिशा में ले जाता है जहां पर कि आपको बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होता है और बहुत सारी दिक्कतें भी आपको पेश आती हैं। ठीक है, इफ योर एक्शंस आर गुड, इफ यू आर ए थॉटफुल पर्सन, and if you do not suffer from any fault, any weakness, ठीक है, your life can be good। But if you suffer from certain weakness and if your actions are not good, revengeful or wicked, ठीक है, you will have to क्या suffer, because life is such a thing where morality still works। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो यही डिस्कवरी है। ठीक है, यही इग्नोरेंस फ्रॉम नॉलेज है। ठीक है, तो नॉलेज उसका भी क्या है, हेट्रेड का भी है नॉलेज और नॉलेज लव का भी है। ठीक है, किंग लियर को पता था कि उसकी बेटी कितना लव करती है और उसको पता था कि उसकी बेटियां कितनी उसे हेट करती हैं। नो सर, नहीं पता था। तो क्या है ना कि ट्रेजेडी स्प्रिंग्स फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर ओन रिलेशंस। महाभारत में कौन लड़ा, अपना ही गोतिया भाई न लड़ा रे, हैं? किंग लियर में अपने गोतिया भाई सब है, माए बापे बेटी में चकाचक चल रहा है, हैं? तो यही होता है। एंड द मेन थिंग इज द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। जहां ये शुरू हुआ वहां से उस्तादी शुरू हो गया। अब लालू जी का घर काहे तबाह हो गया कि क्योंकि तेज प्रताप और तेजस्वी में बाबूजी के उत्तराधिकारी को लेकर के अकबक्की हो गया। ठीक है, मुलायम सिंह यादव का कुनबा काहे बिखर गया
क्योंकि वहां कुल चचवने सब था। ठीक है, उसी ढंग से आप जहां भी पॉलिटिकल हो या धन संपत्ति कंपनी की बात हो कहाँ तो स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज ऑफ द सेल्फिश एंड। नोबडी गिव्स यू एनीथिंग। ठीक है, एवरीबडी वांट्स हिज मेजर शेयर। ठीक है, देयर इज नो वे टू सेक्रीफाइस, देयर इज नो वे टू डोनेशन, देयर इज नो वे टू सीक लव बट टू सीक क्या? greed, but to seek other things that can make for you more money and more facilities। ठीक है, जब ये चक्कर चालू होगा तो लाइफ में घन चक्कर भी चालू हो जाता है। ठीक है, तो वाचिंग ए ट्रेजेडी इज जस्ट लाइक वाचिंग ए रिलीजियस थिंग। बात समझे? द एंड ऑफ एनी ट्रेजेडी, ठीक है, इज जस्ट लाइक एन एंड ऑफ एनी एपिक। बात समझ में आई? तो ये तो यहाँ हो गया। देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज। ठीक है, इन विच यू विल सी हाउ ए हीरो इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज गुडनेस सफर्स बिकॉज ऑफ हिज क्या? फॉल्ट। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज गुडनेस देर इज a weakness present in his character and that leads him to his downfall। क्लियर हुआ? यस सर। चलो, तो आज का कहानी इतने हो गया। अब सारा पॉइंट्स तुम लोग देखते रहना, ये नहीं कि आज पढ़ाए ना तो उसको छोड़ देना, फिर सपना में भी उसको नहीं देखना। ये सब कुछ नहीं है। जो लिखाते हैं उसको बराबर देखो और इसके बाद लिखने का प्रयास करो, तब होगा। अदरवाइज एक कान से सुने दूसरे कान से निकल जाएगा। ठीक है? अब हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट सर। ओके सर। ओके सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। क्या राजू बाबू कैसे हैं? अपना बताइए। कैसे लगता रजाई में हिले हुए हैं? सब बढ़िया है। सब चकाचक है। बड़ा दिन में नजर आए, क्या बात है? नहीं, हम मैं घर में रहते हैं लेकिन फटोइया बंद कर रहते हैं तो वाला। और यही फोन लगा था। क्या हाल चाल है दयानंद जी? ठीक है, जा रहे हैं दारू पीने। ये अलग ही ड्यूटी के झंड कर ले।